Welcome back, dear aspirants. This is Dr. Amir Raza, and you are watching the Medical Science YouTube channel. As you know that in the last video, we have solved the BS Nursing STS DNSK entry test past paper 2023 biology portion. And in this video, we are going to solve the uh, past paper 2023 physics portion. Okay, so let's start. Question number 11, a force of 200 Newton acts on the body of mass 20 kg. The force accelerates the body from the rest until attains a velocity of 50 meter per second. Through what distance the force acts? Option A 120 meter, option B 125 meter, option C 130 meter and option D is 145 meter. ओके फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे देन हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस ना कि बल्कि हम क्या फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट ओके सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए यहाँ पे हम जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल 200 बाय 20 ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में जहां से हम ऑब्टेन करेंगे displacement or distance okay vf square is equal to vr plus 2as this is right from the third equation of motion उसको हमने रीअरेंज किया है अब हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो vf स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड तो इसको हम स्क्वायर करेंगे इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी yes from the rest so initial velocity is 0 and 2 into acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा 125 मीटर सो करेक्ट आंसर इज 125 मीटर दिस इज टू सिंपल क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बिलर हैं पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है बट मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को So, Cartesian coordinate system, option A is 1, option B 2, option C is 3, option D is 4. The number of perpendicular component of force. Force क्या है? It is the vector quantity और इसके perpendicular components कितने होते हैं? In the x direction में भी होते हैं, y में भी होते हैं और z direction में भी होते हैं. So, correct option is C, 3 components. Okay. Now, question number is 13. Mass of Earth can be calculated on the law. Option A, Newton's second law of motion. Option B is Newton's law of gravitation. Option C is Coulomb's law. Option D is Ampere's law. हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अर्थ का मास इट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द gravitational law, Newton's gravitational law. So correct answer is B. Now moving towards the question number 14. A body is said to be in the neutral equilibrium if its center of gravity. Option A is at its highest position. B is option B is at its lowest position. Option C is maintain its highest after being displaced. D is situated at its bottom. So जब बॉडी को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज इट मेंटेन इट्स हाइट आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड इट विल मेंटेन जब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उसका जो हाइट होगा वो फिर से मेंटेन हो जाएगा So this is the condition for a body is said to be in the neutral equilibrium. So C option is the correct. Now question number 15 is fossil fuel energy in kilojoules. Option A solar energy, option B wind energy, option C coal, petrol and gas, option D hydroelectric. Fossil fuel में कौन सा एनर्जी होता है कौन से एनर्जी इंक्लूडेड होते हैं fossil fuel is like coal, petroleum and gas. So correct option is C. Now question number 16 is a car weighing 12 Newton has a speed of 20 meter per second. Take gravity is equal 10 meter per second. Its kinetic energy is. तो हमने क्या फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है सो मास इज इक्वल टू सॉरी ओके मास इज इक्वल टू वेट बाय ग्रेविटी आपने वेट पढ़ा होगा वेट इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो मास निकल आएगा मास इज इक्वल वेट बाय ग्रेविटी ओके अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 12 के न्यूटन मींस 12,000 ओके
अपान में 10, थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मास कितना आ जाएगा, 1200 kg। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। जब हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इट विल बी लाइक 240 किलो जूल, 240 किलो जूल। तो ये सिंप्लीफाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, ये आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज टू इजी। तो द करेक्ट आंसर इज 240 किलो जूल। Question number 17 is a body of mass 50 kg is raised to a height of 3 meter. Take like gravity is equal to 10 meter per second square. What is its potential energy? Option A 1100, option B 1400, option C 1600, option D is 1500 joule. So simply we put the values in the formula for the potential energy. So potential energy के लिए formula क्या होता है, mass into gravity into height mgh। सो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 50 इंटू 10 इंटू 3, इट विल बी अबाउट 1500 जूल। सो करेक्ट आंसर इज डी। आई थिंक फिजिक्स इज टू इजी। Question number 18, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spinner at a distance of 10 centimeter from a nut. The torque produced by the force is option A 5 meter, option B is 6 Newton meter, option C is 10 Newton meter, option D is 50 Newton meter। इसमें भी सिंपली हमें क्या करना है, टार्क का फार्मूला लगाना है। टार्क किसके इक्वल होता है, टार्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 100 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 एंड इट विल बी 10 न्यूटन मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको आप जो है कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपने ये जो वैल्यूज दिए जाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपने उनको स्टैंडर्ड्स वैल्यू में रखना है। जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट करना होता है। पहले आपने ये ध्यान ध्यान में रखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपने ध्यान में रखना होता है जितने वैल्यूज दिए गए तो हमने वो हमें किस यूनिट में दिए गए। Question number 19 is the minimum number of forces that can be added using head to tail rule are option A 2, option B 3, option C 4, option D 5। Head to tail rule starts with minimum 2 vectors। head to tail rule जो एडिशन का रूल होता है फॉर द वेक्टर्स, इट स्टार्ट्स विद एट लीस्ट 2 vectors। Correct option is A। Question number 20, the distance between the centers of the sphere is 0.5 meter. Then the gravitation of the force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. Option A 3.57 10 raised power minus 4 Newton, B is 4.31 10 raised power minus 4, C is 5.61 into 10 raised power minus 4, D is 2.76 into 10 raised power minus 4 Newton। What will be the correct answer for this? सिंपली आपने ये फार्मूला इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस फार्मूले के थ्रू आप जो है इसका आंसर निकाल पाएंगे। जब इस फार्मूले आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो जब हम इसको पुट करके वेरीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.6 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें अर्थ का क्या फाइंड करना है, द अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फीयर ईच ऑफ द मास 1000 kg। सो आपने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपली आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। इस टेम्परेचर पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, इट इज अबाउट 4 सेंटीग्रेड। बट एग्जैक्ट 4 सेंटीग्रेड पे जो वाटर का डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी इज द ऑप्शन ए स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी स्पीड ऑफ लाइट। ओके, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल mc²। तो यहाँ पे जो c है ये किसको शो करता है, सो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 23, a stone of mass 500 gram strikes, 500 gram है यहाँ पे, strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground? Option A 110, option B 100, option C 115, option D is 150. ओके, तो सिंपली आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करना है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv². ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. यहाँ पे 500 ग्राम है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे. 500 ग्राम किसके इक्वल होता है, 0.5 केजी, क्योंकि हमने एसआई में तो यूनिट करने ना कन्वर्ट पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. ओके, इनटू 20, वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 100 जूल. ये ऑप्शन इज द करेक्ट. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 24. The rate of change in momentum is equal to applied force. This statement is called option A Boyle's law, B Ohm's law, C Newton's second law of motion, D Coulomb's law. The rate of change in momentum is equal to applied force. This is the statement called as Newton's second law. This is the statement of Newton's second law. Okay, Newton's second law क्या होता है, F is equal to m. Okay, now question number 25 is two equal but unlike parallel force having different line of action producing rotation defines. Option A torque, option B a couple, option C equilibrium, option D neutral. Okay, two equal but unlike parallel force having different line of action producing rotation defines a couple. ये ऑप्शन इज करेक्ट. कपल में क्या होता है, इक्वल होते हैं फोर्सेस बट अपोजिट और पैरेलल होते हैं. ठीक है. Then now question number 26, the rate of displacement is called, and this is too easy, the rate of displacement is called the velocity. Displacement का rate क्या होता है, velocity होता है. Displacement by time, rate क्या होता है, किसी चीज को टाइम के साथ डिवाइड करना. Question number 27, a body is said to be in equilibrium when its option A acceleration is uniform, B speed is uniform, C speed and acceleration are uniform, D acceleration is zero. Acceleration कब प्रोड्यूस होता है, जब velocity चेंज करता है, या तो ज्यादा होता है या कम होता है. तो जब एक्सीलरेशन ही जीरो होगा तो जाहिर सी बात है बॉडी जो भी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. Okay, now question number 28, a man has pulled a cart through 35 meter applying force of 300 newton. The work done by the man is simple, very simple. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का फोर्स कितना है 300 न्यूटन इनटू 35. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 10500 जूल. सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, तो ये तो सबको पता होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है. इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज which is not a unit of power. Option A horse power, option B British thermal unit, option C watt, option D न्यूटन मीटर. कौन सा यूनिट जो है वो पावर का नहीं है. पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, ओके वाट. वाट तो पावर का यूनिट होता है, पावर का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है और हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है. तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट इट इज द नॉट अ यूनिट ऑफ पावर बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ये किसका यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर का तो यूनिट है ही नहीं है. ओके, इफ द मास 31 क्वेश्चन इज इफ द मास ऑफ मार्स इज, यहाँ पे मास दिया गया है मास का 6.42 10⁻23. 31 क्वेश्चन में पूछ रहा है केजी एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर. देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज. ये 31 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना था बट यहाँ पे लिख गया है. अब क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है मार्स के लिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक फार्मूला में वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे. फार्मूला इज जी इज इक्वल जी एम बाय आर स्क्वायर. इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है मास के लिए. मास का जी भी दिया गया है
रेडियस भी दिया गया है और मास भी दिया गया है। तो सिर्फ हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन ऑफ मैरिज आर ड्यू टू, ऑप्शन ए डिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ओनली, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी इज रिफ्लेक्शन ओनली। ये जो ट्विंकलिंग होता है स्टार्स का और मिरेज फॉर्मेशन होता है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन ओनली। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इन एसआई यूनिट्स इज, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर द ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट इज, जी का वैल्यू क्या होता है, जी का जो वैल्यू होता है इट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। आपने आप यूनिट्स देखने हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि वैल्यू सेम देते हैं और जो यूनिट होता है वो डिफरेंट कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वैल्यूज डिफरेंट करते हैं और यूनिट सेम देते हैं। यहाँ पे यूनिट जो है वो सेम दिया गया है और वैल्यूज आपने यहाँ पे चूज करना होगा। ओके, एनीवे बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 is the arrangement used for stepping up and stepping down the voltage is known as, this is too easy। स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन के लिए वोल्टेज का स्टेपिंग अप और डाउन के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, इट इज ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन के लिए यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal component of the force is 20 newton, the force is, okay, आपको कंपोनेंट्स दिए गए और आपसे फोर्स का पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल इन एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन यहाँ पे हम पुट करेंगे 20, और हमें एफ फाइंड करना है, और cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, इट इज 0.866। ओके, यहाँ पे ये 0.86 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा इसको, तो 20/0.866 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर इट विल बी 23.1। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द यूनिट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज, the unit of capacity of capacitor is option A Newton, option B Joule, option C Ampere, option D is Farad। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जो होता है इसका यूनिट होता है इट इज द फैरेड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए वेवलेंथ, ऑप्शन बी टाइम पीरियड, ऑप्शन सी कंप्रेशन, ऑप्शन डी एंटाई नोड। तो जो रेसिप्रोकल होता है वेव का, आई मीन फ्रीक्वेंसी का, इट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 38, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि ये फोर्स होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कपल पूछ रहा है। तो अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी टू लाइक पैरेलल फोर्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, डी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द सेम लाइन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। दो फोर्सेस होते हैं, अपोजिट फोर्सेस होते हैं जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होते। So correct option is C. Now question number 39, a block weighing 20 Newton is filled, lifted 6 meter vertically upward. The potential energy stored in its, option A 120, option B 115, option C 125, option D is 110 joule। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh, mg is the formula for the weight किसके इक्वल होता है, w is equal to mg mass into gravity। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे weight into height। तो weight क्या है 20 न्यूटन है और हाइट क्या है 6 मीटर है, तो 120 जूल। पोटेंशियल एनर्जी will be stored in it, it will be 120 जूल।
क्वेश्चन नंबर 40, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, जितने रेसिंग कार्स होते हैं कैसे स्टेबल होते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग देयर स्पीड, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग देयर स्पीड, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग देयर मास, ऑप्शन डी लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो रेसिंग कार्स स्टेबल होते हैं ड्यू टू द लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इनके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पोजीशन में होता है, लोअर होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होते हैं। और जितना लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतना मोर स्टेबिलिटी होगा। सो ये था फिजिक्स का पोर्शन। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री और इंग्लिश का पोर्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।